Welcome to our show. We're going to talk about India's Test cricket future and can they dominate again. I think हमने अभी wrap up किया अपना बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी. We have also wrapped up the World Test Championship year for 2023-2025, and unfortunately, India has not made it to the final of World Test Championship for the very first time. So, आज का हमारा topic is very timely and very relevant because this is a topic which needs to be covered in depth. And I have my friend and my colleague Yatin Malik, और हम deep में जाएंगे इस topic को discuss करने के लिए. यतिन भाई. डेफिनेटली इंडिया का जो फ्यूचर है इज अ लॉट ऑफ कंसर्न और काफ़ी टॉपिक्स डिस्कस भी आ रहे हैं, काफ़ी एक्स क्रिकेटर्स इसके बारे में बात कर रहे हैं कि व्हाट वुड हैपन टू द फ्यूचर ऑफ इंडियन टेस्ट क्रिकेट. इंडियन टेस्ट क्रिकेट हैज़ बीन थ्रू सम रफ पैच after the T20 World Cup. It's not been a good couple of series, so gives a lot of question, and that's the whole construct of this video and our discussion today. That what has been the reasons for that, and what are the options that India has, and can they dominate World Test cricket again like they did so many times in the past? Can we bring back those golden eras? So let's just deep into it. So first, the rise and the fall. India has had a couple of golden eras in this century as well. Yeah. First one started with in the year 2000 with this series, Border Gavaskar series, in which Harbhajan, Dravid, Lakshman made India like a comeback kind of country, and they dominated the Aussies as well as other countries at home as well as abroad. और इन्होंने प्रूव कराया था कि इंडिया स्ट्रॉन्ग टीम है. द काइंड ऑफ लाइनअप्स वी हैड, आप बात करें लाइक इंडिया लेजेंडरी लाइनअप जो था, दैट Yeah. वाज इन दैट 2000s era, right? I think वो एक era ऐसा था जब India really made an impact on the global cricket, right? That was the era where I think we stepped out as an Indian cricket team on the sole dependence of Sachin Tendulkar, right? 1990s में एक ऐसी इंडियन टीम थी जो कि प्योरली मैक्सिमम जनता ये इस बात से एग्री करेगी कि प्राइमरीली सिर्फ सचिन तेंदुलकर पे डिपेंड करती थी. एंड स्टार्ट ऑफ द सेंचुरी ऑफ 2000 वाज जहां से ये स्टोरी शुरू होती है वेयर इंडिया वाज became a formidable side in all formats of the game under the captaincy of Saurav Ganguly, right? Yeah. और वहां उस से आज एरा क्या. में Yeah. उस एरा में लाइक ऑस्ट्रेलिया वाज सो डोमिनेटिंग वर्ल्ड क्रिकेट कि कोई Yeah. आता ही नहीं था उनके सामने, राइट? कि वो 14-15 सीरीज लगातार जीतते हुए आ रहे हैं, और देन सडनली देयर इज अ टीम जो उनसे फॉलो ऑन लेके कम बैक करती है और क्रिएट्स हिस्ट्री. और लाइक शेन दैट वॉर्न वाज बोलते सो हैं. ग्रेट. या और शेन वॉर्न और मैथ्यू हेडन का डिस्कशन होता है कि वी विल लाइट अप सिगार्स after the third day of the test match once we have closed on this test match and this series, and या they've never lit up those cigars. या सो वो ट्रूली एक गोल्डन एरा था जिसमें हमारी Yeah. बैटिंग लाइनअप स्टार्ट होती थी. सहवाग, सचिन, लक्ष्मण, Dravid, so many greats, even Kumble, Harbhajan Singh, इन्होंने हमारे को इतनी सीरीज चाहिए. जहीर खान, like those players were test match legends. Like आप अगर वो लाइनअप देखो, like we had so many great players at that time. Indian cricket was very strong at that time. फिर एक ट्रांजिशन फेज आया. सडनली ये स्टार्स एज होना शुरू हो गए. आईपीएल ट्रेंड आने लगा, and there were young fielders, young energetic stars coming up, and then एक थोड़ा सा डाउनफॉल आया था. जैसे ही मैं एक एक Era फैक्ट या बताता हूँ पीरियड जो के. हमारे साथ हुआ था 2011 वर्ल्ड कप के बाद. 2011 वर्ल्ड कप हमने जीत के 2 लगातार सीरीज हारी थी, ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से 4-0, और यही अभी 2024 वर्ल्ड कप जीत के हम न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से हार रहे हैं. तो ऐसा कमबैक इंडियन टीम ने बनाया था. बट सडनली वो जब स्टार्स हमारे रिटायर हुए, देन अ न्यू जनरेशन ऑफ स्टार्स केम इन. देयर वाज विराट कोहली, देयर वाज
Rohit Sharma, there was uh, Pujara, Rahane, Jadeja, Ashwin, so many players that came in and changed the whole dynamics of the team और फिर से वो golden era उन्होंने वो revive करा. या नहीं, आई थिंक आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, राइट। आई थिंक वो एक हम अभी तक 4 से 5 कैप्टन देख चुके हैं। मैं सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, एक छोटे टाइम के लिए अनिल कुंबले, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और अब रोहित शर्मा, राइट। ये 6 कैप्टन, 5 से 6 कैप्टन, राइट। एंड एवरी सिंगल टीम दैट वाज अंडर these कैप्टन्स, एक्चुअली सौरव, राहुल और अनिल कुंबले का एरा एक ही टीम पे खेला। फिर धोनी ने अपनी टीम बनाई, फिर विराट कोहली ने उस टीम को आगे बढ़ाया, और आज की डेट में जब रोहित शर्मा की कैप्टनसी में एक ट्रांजिशन पीरियड आ रहा है इस टीम का, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू टेस्ट क्रिकेट, राइट। अगर हम बात करें इंडियन क्रिकेट ओवरऑल की, आई थिंक that will be something that, every format has offered very different flavors of this Indian journey in this whole period. But if we talk about the rise and fall of Indian cricket on test match, I think वो बहुत ही clearly समझ में आता है। सौरव गांगुली, महेंद्र सिंह धोनी era versus विराट कोहली and now रोहित शर्मा era, right? एक clear transition period दिख रहा है coming out of this Rohit Sharma era, which in my view is going to end very soon if it hasn't happened, which हमारा expect prediction हमारे last video में था कि this could be the end of Rohit Sharma's era as a test captain. Didn't happen. Maybe in the next series, I think उसको अच्छे से send off देना चाहते हैं BCCI या जो भी reason है, but this is definitely in the last stages of his era. He's not going to continue for very long on the test side, right? So very Yeah, very very interesting time. या डेफिनेटली. और वो अगेन वो जो पीक से ये लोग निकल के आ रहे हैं, जो कोहली, Yeah. रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे, पुजारा वाले टाइम पे, दे सॉ सो मेनी ग्रेट विक्ट्रीज. इंडिया वाज गोइंग इनटू द WTC फाइनल्स सो मेनी टाइम्स. जीते नहीं अलग बात है, बट दे वर लाइक नंबर वन टेस्ट टीम, स्पेशली एट होम. वो एरा अब फिर से वो नीचे गिर गया है. वो हमारा इंडियन टीम का अभी डाउनफॉल आ गया है. यू नॉट क्वालिफाइंग फॉर द WTC फाइनल. आपने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 10 साल बाद लूज कर दी है. होम पे आप 14 साल बाद हार चुके हो. ओ सी वाइट वॉश हो गया है. सो इट हैज बीन इन डेफिनेटली इंडिया इज गोइंग थ्रू अ ट्रबल टाइम राइट नाउ. बट वो रिसर्जेंस हमें वापस लेके आना पड़ेगा, और वो कैसे आएगा वो हमें सोचने की जरूरत है. आपके आपके कि व्यू में भाई, क्या 3 या 4 या 5 जो भी जितने भी टॉप रीजंस क्या हैं जो एक राइज में इंडिया की था इस पीरियड में और अब एक डाउनफॉल में कन्वर्ट हो गया है वो, इन योर सी माइंड? अगेन ये अब मुझे लग रहा है ये अब एक साइक्लिकल सी चीज हो रही है. सेम थिंग जो पिछले साइकिल में हुआ था वो इस साइकिल में हो रहा है. अब वी हम्म। नीड न्यू स्टार्स. सी वी हैव एजिंग स्टार्स. ठीक है, हम्म। रोहित शर्मा, विराट कोहली, अब ये लाइक अबव 35 प्लस इज नॉट अ गुड एज टू बी एट व्हेन यू आर अ प्रोफेशनल क्रिकेटर. सो आपकी आई साइट, आपकी वीकनेसेस, बॉडी मसल्स, आपकी रिकवरी पीरियड लंबा हो जाता है. सो दोज डोमिनेंट बैट्समैन एंड आर नॉट देयर एनी मोर. एंड अभी जो हम नए स्टार्स देख रहे हैं, दे स्टिल हैवंट गॉट इनफ एक्सपोजर. हमारे पास नया पोटेंशियल बहुत है इंडियन टीम के पास, लाइक ऑल द बिलियन. हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, बट अगेन दे नीड टू प्ले मोर डोमेस्टिक क्रिकेट. इट स्पेशली रिटायरमेंट जो मिडिल में हमारे रविचंद्रन अश्विन जो इंडिया का बेस्ट स्पिनर था उसकी रिटायरमेंट, too much pressure on Jasprit Bumrah. So like there is so much happening in the Indian team. There's bound to be a transition phase. There's bound to be a low phase, is ताकि वो ये सब सीखें, डोमेस्टिक लेवल पे ये सब काम करें, और या ये सब वापस ऊपर आए. They have to come back and like build their structure, build some stars, build a dominant consistent team जो वापस ऊपर लेके आए. I think I 100% agree with you. I think from a cyclical standpoint, this is definitely, you know, जैसे हम बात कर रहे थे एक एंड ऑफ एन एरा फ्रॉम रोहित शर्मा स्टैंड वो एक दिखेगा हमें. एंड आई थिंक विद द फॉर्मेशन ऑफ दीज न्यू प्लेयर्स, with the combinations of, you know, Shubman Gill,
Yashasvi Jaiswal at the top of the order, right? To even like the likes of Nitish Reddy और जितने अच्छे stars हमने और ये border गवास्कर trophy में देखे, right? From Harshit Rana to all these young guns of the future of Indian cricket. I'm sure it will take time for them to so well settle in. Team has to give confidence to them and all that. But I think मुझे जहां तक लगता है भाई, there is very clear model where India has found success and where India has not found success, right? India has found success under strong captains, first thing, right? You have to have a very strong captain who knows exactly what he is doing on the field. सौरव गांगुली और महेंद्र सिंह धोनी में ये एक बहुत अच्छी चीज थी. To be very honest, to a large part of Virat Kohli's captaincy, he was there as well. He knew exactly what he was doing. It was when Virat Kohli started failing on his personal performance, he started doubting his captaincy skills as well, right? और वहां से वो उसका डाउनफॉल शुरू हुआ. रोहित शर्मा मुझे लगता है एक थोड़े से क्लूलेस कैप्टन है, एटलीस्ट व्हेन इट कम्स टू टेस्ट कैप्टनसी, राइट? उनकी पूरी कैप्टेंसी में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में भी देखा, ही वॉज नॉट द कैप्टन दैट वी सीन एज रोहित शर्मा इन द T20 फॉर्मेट एंड द ODI फॉर्मेट. तो वो एक मुझे बहुत बड़ा फैक्टर लगता है फॉर सक्सेस ऑफ द इंडियन टीम, इंडियन टेस्ट टीम in the era that we're talking about. And the second most important factor is we need a very, very strong and stable middle order in Test cricket, especially from a batting standpoint. जब हमारे पास राहुल द्रविड़ था, जब हमारे पास तेंदुलकर थे, जब हमारे पास पुजारा था, राइट, एंड रहाणे अजिंक्य पुजारा रहाणे या था, राइट, दिस वाज अ वेरी डिफरेंट साइड, राइट. But when it came to an era where at times we tried Yuvraj Singh in the test team, at times we tried some other combinations as well. सूर्य Uh, कुमार यादव को भी लेके आए थे. those exactly right. विराट, सॉरी, सहवाग भी बीच में नीचे आए थे, द स्टार्ट ऑफ हिज करियर इन टेस्ट क्रिकेट. तो वो मुझे लगता है plays a very big role in India's success in Test cricket is captaincy and clarity of thought process and आपकी strategy from session to session, from day to day, and the ability to have a very strong middle order. In my view, those that's the two success factors or so-called failure factors, जो कि इस era में मुझे दिख रहा है very clearly. या या डेफिनेटली. मैं यही भी बिलीव करता हूँ, एक जो कैप्टन इनिंग्स जो हम बार बार डिस्कस करते हैं व्हेनेवर वी प्ले क्रिकेट एज वेल, जो भी हम देखते Yeah, हैं कि दिस गाय प्लेड द कैप्टन इनिंग्स, काफी टाइम से इंडियन कैप्टन्स में दिखाई नहीं दी अपार्ट फ्रॉम जसप्रीत बुमराह जो रिसेंटली कर रहे हैं. ठीक है, विराट कोहली कैप्टनसी का प्रेशर आता था तो इस वजह से उनको yeah, हटा के somebody else became the captain. रोहित शर्मा भी जब कैप्टनसी कर रहे हैं तो कोई ऐसे हमें दिखने को नहीं मिल रही हाँ ही प्लेड अ कैप्टन्स इनिंग्स. सो यू आर राइट, वी आर लैकिंग दैट कैप्टन्स इनिंग्स और वो हमें फ्यूचर में लानी पड़ेगी. बट अगेन हमारे को जो वापस आना है, देयर इज अ लॉट ऑफ पॉइंट्स टू बी डिस्कस कि क्या हमारे अभी चैलेंजेस हैं जो हमें आगे फेस होने वाले हैं इन आर बैटिंग, आर बॉलिंग एंड दैट एक्सपेक्टेशन प्रेशर. सो पहले आ जाते हैं बैटिंग पे, क्या हमारे बैटिंग बिल्कुल, चैलेंजेस हैं. yeah. सो एज यू सेड, हमारा मिडिल ऑर्डर, दैट्स द प्रॉब्लम. आई काइंड ऑफ फील देयर इज वन मोर प्रॉब्लम, हमें एक वॉल डेवलप करनी है. वी Mm. ऑलवेज नीड अ वॉल इन टेस्ट मैचेस. अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने देखा मार्कस लेबुशेन वो रोल प्ले करते हैं, Yeah, जाके 200-300 बॉलें खेलनी है चाहे जो भी है, yeah, दैट्स योर टारगेट, स्कोर 10 रन्स इन दोस 200 बॉल्स, बट यू नीड टू प्ले, यू नीड टू स्टे विद द डेवलपमेंट ऑफ आईपीएल और ये सब अटैकिंग क्रिकेट के साथ यू गेट बिग मनी. सो टेस्ट मैच में भी सबने अपना यही फॉर्मेट बना लिया है कि अटैक करो. द काइंड ऑफ थॉट कि शुभमन गिल इज दैट गाय हु वुड स्टे, बट उनका भी टेस्ट क्रिकेट में यही रहता है, ही वांट्स टू डोमिनेट द बॉलर्स. So he's not playing out as many deliveries. KL Rahul has shown that temperament, but he is also a very stylish batsman. A wall doesn't need to be very stylish. A wall should face
जो उसको आके लग रही है बॉल उसकी पिटाई होनी चाहिए, उसके बॉडी पे निशान होने चाहिए यहाँ से वहाँ, चाहे जैसा भी है। लाइक चेतेश्वर पुजारा, हैट्स ऑफ टू दैट गाय, वी मिस दैट गाय सो मच। वो जब खेलता था लाइक मतलब कुछ भी स्टाइल नहीं, बैट ऊपर आता ही नहीं था, नो बैकलिफ्ट, नीचे नीचे से ही बैक जहां पे खेल रहा है बॉल निकाल रहा है, बट अगेन ही प्लेड दैट रोल, तो वो मिसिंग है। वी नीड कपल ऑफ दोज गाइज एक्चुअली। प्रॉब्लम यही आ रही है, देर थिंकिंग कि हमारे जब टॉप 6 नहीं कर पाते परफॉर्म, तो वी नीड टू प्ले ऑलराउंडर्स एट द लोअर ऑर्डर, बॉलर्स हु कैन बैट, उनको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है रादर देन जेन्युइन बॉलर्स। So that is the problem. These top 6 need to perform. You need good solid openers. Openers जो न्यू बॉल को सी ऑफ करें, नॉट अटैक करें कॉन्स्टस की तरह। हमें ये नहीं चाहिए कि मार पीटो। ओपनर्स जस्ट सी ऑफ द न्यू बॉल, दैट्स योर रोल इन अ टेस्ट क्रिकेट। लाइक यू हैव टू गो बैक टू द बेसिक्स। कि बेसिक क्या कहते हैं, ओपनर्स का रोल है टू सी ऑफ द न्यू बॉल, जो स्विंग हो रही है उसको नेगेट करो, जस्ट स्टे देयर, ताकि जो 1 डाउन और 2 डाउन है उनको एकदम से एक्सपोजर ना मिले। एंड देन द बॉल कम्स, देन उस बॉल को पुरानी करते हैं, 3 4 5 बिल्ड देयर इनिंग्स। दैट्स हाउ ट्रेडिशनल टेस्ट क्रिकेट इज बेस्ड ऑन, और हमें वही करना चाहिए। आई नो दे प्लेइंग बैस बॉल एंड एवरीथिंग, जो चैलेंजेस उनको लग रहे हैं कि चलो अटैक करते हैं, डोमिनेट करते हैं, वी नीड टेस्ट रिजल्ट। बट जब व्हेन अ टीम is going through transition, when your team is in trouble, you don't hit your way out in test cricket. You go back to the basics. It's not T20. You go back to the basic, go back to the drawing board, form a proper team combination, 6 batsmen, 5 bowler, and then go try to win a test match. um, इस पे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि कोचिंग का क्या रोल रह सकता है इसमें? सी अगेन, कोच का तो इतना बड़ा रोल होता नहीं है टीम में, राइट? ही इज जस्ट एन एडवाइजर टू द कैप्टन फ्रॉम द आउटसाइड। बाहर मैच के, क्रिकेट इज नॉट अ गेम कि उसको पता नहीं चल रहा कैप्टन को कि हो क्या रहा है। यू आर नॉट ऑल द टाइम ऑन द ग्राउंड, यू आर बैटिंग बाहर से, आप all the time you're not playing, or fielding maybe you are setting the field, you can see where everybody is, you have time to pause and think. कोच का रोल है इज जस्ट एन एक्स्ट्रा माइंड अहेड, जिसका सिर्फ प्लेयर कैप्टन को एडवाइस करने का रोल है। They are given too much of free hand. Again, I have been focusing on that point for a while. ये कुछ ज़्यादा ही limelight में आ जाते हैं in selection and everything. It should be, he's just an extra mind, extra uh, like assistant to the captain in एडवाइजर, या selecting and managing या the team. A team या manager is more important than a coach in nowadays, I think. या आई थिंक फॉर द सो आई थिंक मैं आपकी बात से पूरा अग्री करता हूँ फ्रॉम अ टैक्टिकल स्टैंड पॉइंट। इसमें लेकिन एक थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे ये है कि द ऑल्सो द लाइमलाइट जो कि रिसेंट टाइम्स में एंड द अमाउंट ऑफ मनी द कोचिंग स्टाफ गेट्स एट दिस टाइम एंड एज ऑफ द क्रिकेट, I would actually put a lot of focus with respect to their performance as well. Not because it plays a role, because I 100% agree with what you're saying. But अगर तुम्हें तो limelight चाहिए, right? अगर तुम्हें तो पैसा चाहिए, right? I am a strong believer. You need to own up those things as well, right? You need to have a very clear picture and a very clear idea of what your role as a coach has to be for the team, right? You can be, which again, as a coach, you don't need to, कैन बी डाइट पर्सन, राइट? कि मैं अपनी फिटनेस लेवल से इस टीम की ये करूंगा, राइट? या मैं अपने बैटिंग, जो भी टीम होगी उसकी बैटिंग का फॉर्मूला ये रखूंगा, राइट? When Macmillan came to England, he said we'll play baseball cricket, right? That was a coach's so-called way of looking at and formation of how he wants the team, and how he so-called said, hey, this is what selectors, give me a captain, give me a team player who can essentially deliver this thing to me. And he basically said, hey, आप नेट्स में जाओ सारे बैट्समैन और ये करो, राइट? अगर आप वो कर रहे हो, राइट, फॉर द लाइमलाइट एंड फॉर द मनी दैट यू गेटिंग, आई थिंक दैट इज व्हाट दैट कोच शुड डू। बट क्या गंभीर वो करना चाहते हैं? क्या वो गंभीरता से इस बारे में सोच रहे हैं? आई एम नॉट गेटिंग दैट फीलिंग। आई एम गेटिंग अ फीलिंग वेयर दे आर नाउ टू मेनी कुक्स इन द किचन एंड दिस इज अ स्पॉइल्ड ब्रॉथ, So, राइट? एक स्ट्रैटेजी ये भी कर सकते हैं ये लोग ना, टेस्ट और ओडीआई और
वनडे के जैसे अलग अलग कैप्टन है, इनके कोच भी बदल दो। बिल्कुल, मुझे बड़ा बिल्कुल। अच्छा लगा था जब ये लक्ष्मण गए थे वहां पे कोच बन के, उन्होंने फ्री हैंड, भैया तुम चूज करो, हम बाहर से बैठे देख रहे हैं, तुम यस, कुछ भी चूज करो, टीम करो। सूर्य कुमार यादव पे पूरा छोड़ दिया था T20 मैचेस में, साउथ अफ्रीका खेलो, खेलो अपना, या हम बस बाहर बैठे हुए हैं, हम तुम्हें असिस्ट करने आए हैं। डोंट फिक्स यही इफ इट होना एंट चाहिए ब्रोकन। कोच करो। या डोंट फिक्स इफ एंट या ब्रोकन, राइट? या सो आई थिंक यही रोल होना चाहिए, और कोचेस शुडंट बी गिवन दैट मच ऑफ अ फ्री हैंड, सो दैट्स माय थिंग। अब इंडिया की तो बॉलिंग कि पे आ पैसे जाते कम हैं। करो, उनकी लाइमलाइट कम करो, उनको पीछे बेंच पे बिठाओ। इज माय पॉइंट, लाइक दिस इज जस्ट एब्सोल्यूट डेफिनेटली। मैडनेस, द काइंड ऑफ लाइमलाइट, द काइंड ऑफ, लाइक जब गंभीर टीम में एज अ कोच आ रहे थे, मुझे लगा ऐसे कम बैक कर रहे हैं एज अ प्लेयर, राइट? वो रिटायरमेंट से मुझे लग रहा था वापस आ रहे हैं, ऐसे ऐसे ही शोर मच रहा था। बट अगेन, यू कैनॉट हैव, उनके वीडियोस आ रहे हैं, उनके एक्सवाइजी चीजें आ रही हैं, जो गिवन लाइक करोड़ ऑफ मनी, श्योर आपके पास है एज बीसीसीआई के पास, तो दे आर एबल टू स्पेंड, बट इट्स अ हाई इट्स जस्ट प्रोफाइल अ जॉब दो, इट्स अ नॉइस। हाई प्रोफाइल जॉब, सो कह नहीं सकते। Exactly, it's too much noise at this point in time, right? Either you play, you be a part of the noise, and you basically become an impact in a way, or you just stay at the back end and don't be the noise as well. या सो Yeah, डेफिनेटली मेरे हिसाब से लाइक गंभीर ज़्यादा टिकेंगे नहीं, मुझे लगता है। yeah, इंडिया इज सच अ बिग टीम, इतनी जल्दी वो चॉप एंड चर्न कर नहीं सकते। ही प्रॉब्ली बी गिवन लाइक फ्यू मोर सीरीज टू प्रूव, और एक दो सीरीज जीतने के बाद हो सकता है वो बोले हाँ देखो मैंने जिता दी, मेरी वजह से जीती है, एंड बीन थ्रोन अ लिटिल लॉन्गर रोप। बट गंभीर की स्टार्ट तो काफी बिल्कुल अच्छी नहीं हुई है मेरे हिसाब से, द yeah. सीरीज But ही I think बीन इन्वॉल्व इन। Gambhir का track record देखूं मैं तो, I think if that this pattern continues, I think he might step down himself. या सो कुड बी अ पॉसिबिलिटी, जब वो चार Yeah, बार जीरो पे आउट हुआ था केकेआर के कैप्टन के साथ, तो खुद ही अपने yeah, आप को ड्रॉप करके बैठ गया था बाहर। सो exactly. प्रॉब्ली अब ये चार सीरीज हार के, सो 4-0 को रिकॉर्ड के साथ ही माइट सिट डाउन टू, सो दैट्स नॉट अ Yeah, इशू। yeah, हाँ भाई, हम बात कर रहे थे ऑफ बॉलर्स ऑफ इंडिया। बैट्समैन की हमने बात कर ली कि दैट्स द प्रॉब्लम, बॉलिंग में भी देयर इज अ प्रॉब्लम। ओवरसीज कंडीशन में वी कांट ट्रस्ट आवर स्पिनर्स, दैट्स इंडियन टीम्स प्रॉब्लम, दे आर चॉपिंग एंड चर्निंग। रविचंद्रन अश्विन जैसे नंबर वन बॉलर को तुमने हटा के वॉशिंगटन सुंदर को पहले ऑप्शन दिया है, जडेजा को पहले प्रेफरेंस दी है, दैट का हैड टू रिटायर। और अब उनके जाने के बाद इट इज सच अ बिग होल इन द bowling scenario that it's very hard to fill, स्पेशली जब इंडिया में टेस्ट मैचेस होंगे तो ठीक है, बाहर जब जाएंगे ना तो हमें वैसा प्लेयर मिलना बहुत मुश्किल है, और इनको वही खिलाने पड़ेंगे स्पिनर्स हु कैन बैट। वॉशिंगटन सुंदर को अगर इनको नंबर वन स्पिनर बनाना है, सो ही नीड्स टू फोकस मोर ऑन हिज bowling rather than his batting. I think more focus is given to his batting right now. लेकिन वो फोकस तो कर लेगा, लेकिन उससे बॉलिंग करवाई भी तो कैप्टन कैप्टन ने बॉलिंग ही नहीं करवाई उससे। एक एक वो ओवर मिल रहा है तुम्हें। राइट, तुम सो एज ए बॉलर खेल रहे हो, टीम में बॉलर बैट्समैन खेल रहे हो, तो तुम एज ए बॉलर से बॉलिंग तो करवाओ यार। तुमने शुभमन गिल को बिठा या दिया उसको खिलाने के लिए, और तुमने उसे बॉलिंग भी नहीं करवाई, या राइट? सो जस्ट सो एब्सोल्युटली अगेन दैट वाज रिडिकुलस। क्रेजी जजमेंट। टोटल टीम सिलेक्शन की सारे प्लेयर्स, एक्स प्लेयर्स भी बुराई कर रहे हैं कि या दैट टीम सिलेक्शन वाज वेरी पुअर। या बट आई थिंक हमने इस बारे में थोड़ा बात करी भी थी, जब अश्विन के लिए भी वीडियो बनाया था हमने। At this point in time, there is no clear test match spin bowler that India has of the ranks of Ravichandran Ashwin, हु right? इज द नंबर वन स्पिन बॉलर इंडिया हैज? अभी नंबर वन पे कौन है? भाई जडेजा। नोबडी नोज एक्चुअली, प्रॉब्लम Yeah, ये है ना, जडेजा है yeah, कि नहीं है, वॉशिंगटन सुंदर है कि नहीं है, yeah, कि yeah. पता नहीं, आप वो उसको ले आएंगे, कुलदीप यादव को वापस ले आएंगे, लाइक वी डोंट नो I would say he's दैट। probably better than these two. Absolutely. आई अग्री कि कुलदीप Yeah, यादव इज अ बेटर ऑप्शन, ही yeah, शुड हैव बीन प्लेइंग, yeah, बट कुछ नहीं पता। yeah, सो दैट्स द इन प्रॉब्लम इंडिया हैज राइट नाउ। हमारी yeah, स्पिन जो इतनी स्ट्रेंथ होती थी फ्रॉम ऑल दोज इयर्स, वी yeah, हैव अ वीक ओपन वीकनेस राइट नाउ, वी डोंट हैव अ क्वालिटी स्पिनर, नंबर yeah, वन टेस्ट स्पिनर फॉर इंडियन क्रिकेट टीम। दैट्स अ yeah, ह्यूज कंसर्न। yeah, बुमराह है हमारी फास्ट बॉलिंग के लिए, और उसको
थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए सिराज, बट जब बुमराह नहीं होता तो सिराज भी खत्म है। बुमराह Yeah, का काम यही है कि ही मेक सो मच प्रेशर ऑन द अदर बैट्समैन दैट he's सिराज उसको Siraj. कॉम्प्लीमेंट करके विकेट ले रहा है। Correct. Siraj in itself is not that much capable. So we need a third fast bowler who can support it. जो कि यहाँ पे ये नीतीश रेड्डी को खिला रहे थे. So that's also I don't know क्या टीम स्ट्रेटेजी थी, क्या थिंकिंग. So And I that's a think, yeah, concern. yeah, no, I think that's absolutely true, right? Like there is no grooming pattern, right? टेस्ट मैच में अगर आपके पास एस पेस बॉलर है, जैसे एक टाइम पे जहीर खान थे, राइट? एक टाइम पे थोड़े टाइम के लिए ईशांत शर्मा थे, राइट? बट वी ऑल्सो हैड द लाइक्स ऑफ a lot more, right? Like the RP Singh guy, Irfan Pathan ने थोड़े दिन राज किया, right? We also had other bowlers who essentially came in for their certain time periods and made an impact. और उसके बाद से जब से बुमराह आए हैं तब से बुमराह ही चल रहे हैं. बट एक बैकअप नंबर 2 पे कौन है, नंबर 3 पे कौन है? यू नीड एटलीस्ट 3 गुड फास्ट बॉलर्स. ऑस्ट्रेलिया के पास these four bowlers have been the backbone for them for 8 continuous years, 9 continuous years, right? That's what make that team. South Africa, when they dominated, they had a very strong 3 or 4 bowlers, right? From Sean Pollock to Alan Donald to Jack Scalise, and on all these players were Dale just Steyn. amazing. Dale Steyn, right? West Indies of the 70s, 80s, 90s, right? Amazing bowling lineup, right? You have to have a lineup. You cannot have a one shining star with other average bowlers. It will not fly, right? और वो thought process या वो grooming process नहीं दिख रहा, right? क्या वो मयंक यादव को कर सकते हैं, लेकिन मयंक यादव की स्पीड ऐसी है कि he will not survive the test match format, right? Very fragile. वेरी फ्रेजाइल, राइट? तो वो कहाँ, वो ग्रूमिंग ग्राउंड कहाँ है, राइट? जो पहले मोहम्मद शामी, अगेन ही हैज फ्यू इयर्स, राइट? सो यू कैन यूज दोस फ्यू इयर्स टू फाइंड दैट ग्रूमिंग पैटर्न, बट दैट्स इट, राइट? Yeah, yeah. आपको So ग्रूम ये करना पड़ेगा. प्रॉब्लम है. या इंडियन बॉलिंग को हैज टू कम अप. बुमराह भी हर मैच नहीं खेल पाएंगे. You have to understand 5 matches के बाद he has a stress fracture. So basically he या technically played 4 matches only. So he या cannot play all the matches. And India needs him in all formats too. So I think he'll go for all important series like this या Border Gavaskar, or I think next series के लिए उनको rest करेंगे. फिर he'll come back for the Champions Trophy and probably should play only important matches in that as well, because he's a star. I think he's a different breed than all of the other players. All of the other players need to be on the field. Bumrah, we should be on the field when necessary. But apart from Bumrah, we have bowling issues. We need players who can support Jasprit Bumrah as a bowler in the bowling team, especially in test matches, who can bowl those 30, 40 overs with strength in an innings. So बॉलर्स तो डेफिनेटली इंडिया को चाहिए ये आगे. बट देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस इंडियन क्रिकेट टीम से. देयर इज अ बिलियन फैंस सपोर्टिंग देम. तो हमें उन उन कुछ एक्सपेक्टेशन का जो प्रेशर हो जाता है ना, तो उसकी स्क्रूटनी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है प्लेयर्स की. सो सो दैट इज वाई इनको प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर पा रहे. आई थिंक मोहम्मद सिराज की बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी हुई, दैट्स वाई ही कैन नॉट परफॉर्म. सेम बैटिंग में आ जाते हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली. सो दैट्स वेयर लाइक ये प्रेशर बहुत ज़्यादा है. सो somebody needs to step in and change all this. या आई थिंक इन समरी, आई थिंक हम दोनों यही बात कह रहे हैं कि इट्स अ प्रॉब्लम, देयर इज प्लेंटी ऑफ प्रॉब्लम्स. It's a problem of plenty, right? Yeah. Which is right. There's too many options on the table, but average options. But ये सिर्फ limited नहीं है एक चीज के लिए. From batting to bowling in spin to bowling on the fast tracks to bowling in different conditions, right? To having a temperament on Test cricket versus white ball cricket. There's just lots to be solved for, right? At this time, बहुत ही glaringly दिख रहा है कि there is an actual gap on the Indian Test cricket team, which has been fully exposed
in the last two test series. Yeah. But positive thing is there is some future stars. हमारे पास potential है, world class potential है. The only shining light in the batting uh, part of this couple of series has been यशस्वी जायसवाल. Consistently perform करते आ रहे हैं. इनका बहुत अच्छा साल रहा है. ठीक है. यशस्वी जायसवाल is definitely one It's a guy rising who's star. gonna be the run scorers in the next few years. So, agar, so that is one of the future potential stars. I think KL Rahul has some years in Test cricket. So KL Rahul would be one of the major core players. अगर और बात करें ऋषभ पंत will stay and he'll be the dominant wicket keeper batsman. उनको he'll step up in some of the matches. I think last match में उन्होंने करके दिखाया दिया था 33 बॉल 66 जो मारे. So ऋषभ पंत definitely. शुभमन गिल ऑन ऑफ रहे हैं. इनिशियली उनका स्टार्ट बहुत अच्छा रहा था विद दो सेंचुरी, बट आई थिंक आफ्टर थर्ड मैच टेस्ट मैच उनकी एवरेज अंडर 40 गिर गई है और वो 40 की एवरेज दोबारा टच नहीं करी. फॉर अ यंग अपकमिंग प्लेयर विद सो मच पोटेंशियल एंड टैलेंट, ही नीड्स टू कम अप. रेड्डी रेड्डी ने अभी परफॉर्म किया है. आई थिंक ही शुड बी प्रॉपर बैट्समैन स्पॉट. Sarfaraz Khan. फिर सरफराज खान को ज़्यादा मौके नहीं मिलते हैं. ही इज बीन टेकन इन एंड आउट ऑफ द टीम, सो ही शुड बी गिवन अ चांस. Absolutely. विंग्स में दो लोग बैठे हैं, ऋतुराज गायकवाड और अभिषेक शर्मा. सो आई थिंक ही इज अ ह्यूज पोटेंशियल. सो Yeah. इंडिया के पास टैलेंट है इन बैटिंग लाइन. अब दीज गाइज कैन फिल दोज वॉइड. या नो लेकिन आई थिंक इन नामों की लिस्ट में ना मुझे अभी भी सिर्फ वही प्रॉब्लम दिख रही है जो हमने बात करी, विच इज दैट मिडिल ऑर्डर और जो वॉल की जो आपने बात करी, राइट. वो टेम्परमेंट एक प्लेयर को किसी को ना बनाना पड़ेगा, राइट. अभी तक वो दिखा नहीं है, लेकिन किसी कोच को किसी in this matter I think a coach can step in and say, hey, this is your style and this is what you should do. I want you to play this role, right? Yeah. And I think that's where this team needs to be formed, because there's talent on the batting side for sure in India. Yeah. और वो आएगा कहाँ से? वो आएगा सारा डोमेस्टिक क्रिकेट से, राइट? Absolutely. डोमेस्टिक लेवल पे जो प्लेयर कॉन्स्टेंटली ऐसे खेल रहा है, आई थिंक दैट वर्क हॉर्स विल ओनली राइज अप फ्रॉम द रणजी ट्रॉफी स्ट्रक्चर. Correct. तो ये आई डोंट थिंक सो. जो लिस्ट मैंने जो प्लेयर्स के नाम लिए उसमें वो प्लेयर है. दैट वॉल इज मिसिंग. वो प्लेयर डोमेस्टिक सेक्शन में मे बी इट्स ईश्वरन, मे बी वन ऑफ द अपकमिंग गाइस. ऋतुराज गायकवाड वो रोल प्ले कर सके. ही इज प्लेइंग गुड T20 cricket, but हो सकते हैं someone needs to come up and play that role. I definitely 100% agree. Yeah. बॉलिंग में भाई there is some talent for the future. जैसे आपने बात करी मयंक यादव, अपकमिंग फास्ट बॉलर. उमरान मलिक तो आके चले गए, उनकी तो कोई बात ही नहीं हो रही. बट हमारे दो तीन प्लेयर जो अभी नए प्लेयर, आकाशदीप खेले हैं इसमें, और हर्षित राणा, ये अपकमिंग फास्ट बॉलर हैं. अर्शदीप को दिया था थोड़ी सी लीज की खेलो टेस्ट मैचेस. आई डोंट थिंक सो वो इतना परफॉर्म कर पाए टेस्ट मैच में. सो ही इज गॉन बैक टू हिज T20 फॉर्मेट, आई थिंक विच ही प्लेज बेस्ट. सो लाइक ये चार पांच प्लेयर हैं. प्रसिद्ध कृष्णा ने अच्छा परफॉर्म किया है, सो ही माइट प्ले फॉर इंडिया लिटिल बिट मोर. मुकेश कुमार, आई थिंक वो उनकी भी ज़रूरत थी टेस्ट मैचेस में. वो हमारे स्कॉट बोलैंड बन सकते हैं. सो उनको उनको लाइक दिस इज द काइंड ऑफ फ्यूचर व्हाट आई एम सीइंग, द फास्ट बॉलिंग फ्यूचर ऑफ इंडिया. बट द Yeah. प्रॉब्लम कम्स बैक टू द स्पिनर. स्पिनर कौन Yeah. बनेगा? Yeah. अभी Yeah. इंडिया I के think, I पास mean, जो स्पिनर है वो है वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा और तानिश कोटियान. ये स्पिनर गए हैं टेस्ट उसमें. सो दैट लुक्स वेरी वीक. yeah. कुलदीप यादव चौथा नाम है ऐसे तो, लेकिन आई थिंक अगेन वही प्रॉब्लम है, राइट. हु इज दैट बॉलर जो 30-35 ओवर्स डाल सकता है?
राइट? जो कौन 20 ओवर कंटिन्यूसली डाल सकता है फ्रॉम अ स्पिन अटैक स्टैंड पॉइंट एंड देन जस्ट बेसिकली ड्राई अप द रन्स इन टेस्ट क्रिकेट, राइट? एक सेशन निकाल दे जहाँ पे सिर्फ 30 या 40 रन बन रहे हो, राइट? You know, you basically build that pressure. There's no, I won't even say you need to be a Mutaya Muralidharan or a Shane Warne, but at least Nathan Lyon to bano yaar, right? Yeah. Anil I, Kumble to I bano think कम से जडेजा कम. वो रोल प्ले करता है ऑफ दैट कंटेनर. जडेजा एक एंड से रन रोकते हैं, बट वी नीड एन अटैकर, समवन जो प्लान के साथ बॉलिंग करे, 10 ओवर एक प्लान के साथ बॉलिंग करे इस विकेट लेने के लिए. मेरे सो पास दैट एक नाम 10 है ओवर उसके लिए. प्लानिंग दैट अश्विन है. हाँ जी, मेरे पास एक नाम है उसके लिए, बताइए. और हम भूल रहे हैं, अक्षर पटेल. Akshar Patel again, he cannot complement Jadeja, right? He's going to be a या replacement of Jadeja. ही नीड्स टू बी रिप्लेसमेंट ऑफ जडेजा, बट आई थिंक मुझे लगता है कि वो अच्छे रिप्लेसमेंट हो सकते हैं, और वो एक क्रिकेटर मुझे Yeah, लगता है कि वो एक स्मार्ट क्रिकेटर है, right? He is one who actually bowls with a plan. अक्षर पटेल ने जब भी टेस्ट मैच में खेला है, एटलीस्ट ऑन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, he's made sure he's got a lot of wickets, right? And he gets wickets as soon as he comes into the attack, right? yeah, Um, definitely. so I think he has the batting potential. We all know that. So he's a good replacement for Jadeja. I agree 100%. But वो मुझे एक लगता है कि एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हो सकता है इंडिया के पास. एंड बिकॉज रविंद्र जडेजा के भी कुछ ही साल बचे हैं अब. He also doesn't have too many But years. we need a spin twin duo at least. Hmm. So Hmm. like Ashwin Jadeja, there's always been players जो spin twins in they take wickets in pairs. और ज़्यादा टेस्ट हम होम पे खेलेंगे. So we need somebody. We cannot play Jadeja and Akshar Patel together, right? Yeah. एक हमें लेग Yeah. स्पिन ऑफ स्पिन का कॉन्ट्रडिक्शन. वॉशिंगटन सुंदर ने होम पे परफॉर्म किया था, अभी 7 विकेट ली थी. Yeah. But again, he should work more on his bowling. Like he Yeah. should be एक primary wicket taking bowler जो हमें जो शेन वॉर्न, अनिल कुंबले, मुतैया मुरलीधरन, Yeah. रविचंद्र अश्विन, we Yeah. need a bowler like that. We Yeah. have containers, but we need an attacking bowler, spinner. तो उसके लिए तो भाई वही है, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल. आई थिंक दैट्स द बेस्ट डुओ कॉम्बिनेशन दैट आई कैन सी फ्रॉम द रैंक्स दैट वी हैव. Maybe there's an upcoming one, or there could be बिश्नोई an upcoming बिश्नोई कह stuff. सकते हैं. He might come up. टेस्ट वरुण क्रिकेट में. चक्रवर्ती, he's been performing well in T20s, so हो सकता है he might come up the rank अगर वो डोमेस्टिक ज्यादा खेले and he's doing something. So there is some good strength spinners, strong spinners in domestic circuit as well, but they have to come up the ranks. Yeah, no, and I think that's the whole thing, right? That's the bottom line of this whole piece is you need to make a grooming ground for Indian bowling attack, spin and pace both, and that grooming ground is Irani Trophy, Dilip Trophy, right, and Ranji, right? You need to bring these players and you need to test them and you need to make them sweat hard in those formats. And that becomes your breeding ground for what then becomes your lineup for test cricket, राइट? वो इनको करना पड़ेगा और इन बॉलर्स को फोर्स करना पड़ेगा टू प्रूव टू देम दैट ए दे कैन bowl from a skill standpoint. Second, they have the temperament to bowl for such long hours. And third, they have the fitness to so-called survive for those long spells in hot conditions. Right? कहीं पे भी समर में ही क्रिकेट होता है, इंग्लैंड में भी ठंड होती है वहां पे, लेकिन वहां के इंग्लिश समर में ही क्रिकेट होता है. ऑस्ट्रेलिया में भी समर में ही क्रिकेट होता है, तो तुम्हें हीट में बॉलिंग करनी पड़ेगी एंड यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दैट. Yeah, रणजी ट्रॉफी और ये डोमेस्टिक सर्किट की बात करी आपने. मेरा एक पॉइंट है विच आई हैव अ बोन टू पिक विद द बीसीआई. जो इंडिया की ए टीम है वो फॉर्मेट इन्होंने इतना स्ट्रांगली डेवलप नहीं करा है. All these Ranji Trophy players should be selected on the basis of their record into an A team. A team should be playing constant matches abroad or domestic. They should get foreign teams here. Parallelly to the Indian cricket team, there should be an A team playing. So they should be the direct feeder to uh, the main 11 team, the first team, rather than going selectively from the domestic culture from the state. Indian A team में there should be a pride in making to an A team. अभी ऋतुराज बॉयकॉट कर खेल लेके गए थे टीम को and he या performed, but that is not consistent. So Indian A team को consistently ही feed करना चाहिए. I think वहां पे
बीसीसीआई को अपना स्ट्रक्चर में थोड़ा सुधार करना पड़ेगा और वो सुधार से काफी फर्क पड़ेगा. लाइक इफ देर उन प्लेयर्स को जो डोमेस्टिक प्लेयर्स खेल रहे हैं मुंबई, कर्नाटका, दिल्ली, उनको ए टीम में पहले सिलेक्ट होना पड़ेगा. देन यू परफॉर्म एट अगेंस्ट इंटरनेशनल ए टीम्स और इंटरनेशनल. देयर सो मेनी टीम्स हु वांट टू प्ले अगेंस्ट इंडियन टीम. इंडियन ए वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ए की ज्यादा व्यूअरशिप होगी रादर देन अ पाकिस्तान श्रीलंका मैच और एन इंग्लैंड साउथ अफ्रीका मैच. आई एम टेलिंग यू. सो इन Yeah. उसके भी काफी प्रमोट कर सकते हैं ए एंड दैट इंडिया ए टीम स्पेशली द 4 day 5 day मैचेस उस they should be the feeder to the national team Yeah. again. That's my point of view. ये आई थिंक डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में इम्प्रूव होना चाहिए एंड दैट्स व्हाई द फ्यूचर ऑफ इंडियन टेस्ट क्रिकेट वुड बी इम्प्रूव. Yeah. तो अब भाई हम बात करी इंडिया की बैटिंग, बॉलिंग, कोचिंग स्टाफ की. अब वी नीड टू डिस्कस कि क्या हमारा फ्यूचर हमारे ग्लोबली कैसा इफेक्ट पड़ रहा है ऑन स्पेशली एशियन क्रिकेट में विद आवर नेबरिंग नेशंस एज वेल. I think there's few things here, right, at play. One is, and I think the point that I think we are trying to sort of tell people here is India as a nation has a place, but India as a neighbor has a big impact for Pakistan, Sri Lanka, Afghanistan, Bangladesh on the world stage as well, right? एंड आई थिंक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बिकॉज एक तरफ है सेना जिसे हम कहते हैं राइट, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, और एक तरफ हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका सब और कॉन्टिनेंट. सब कॉन्टिनेंट, राइट. आई थिंक फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, फ्रॉम जस्ट क्रिकेटिंग स्टैंड पॉइंट, Sena versus the subcontinent teams, they play cricket very differently, right? Just from the style of play of cricket. First thing. Second thing is, um, conditions are very different. And the third most important thing is where India plays a very pivotal role for the Indian subcontinent teams is they have the power of money and investment, and how they control the narrative and how they control the other partners along with it plays a major role, right. अफगानिस्तान की टीम नोएडा में प्रैक्टिस करती है. बांग्लादेश और श्रीलंका की क्रिकेट टीम को जब पैसे चाहिए होते हैं इंडिया से टेस्ट सीरीज कराई जाती है, राइट. पाकिस्तान टीम को कोई इंडिया से सपोर्ट नहीं मिलता है, एंड आई थिंक उनका क्रिकेट इज गोइंग डाउन द ड्रेन बिकॉज ऑफ दैट. सो इट तभी इट उनके ग्राउंड भी डज. रेडी नहीं हो रहे टाइम पे. और उनके ग्राउंड रेडी नहीं हो रहे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी. सो इट जस्ट शोज दैट द टॉपिक दैट इज एट हैंड जो हम आज बात कर रहे हैं ऑफ इंडियन टेस्ट टीम एंड देयर रेलेवेंस इन टेस्ट क्रिकेट needs to have a bigger stage on a global era, because that is also a supporting bone for the other 3 or 4 neighboring countries as well. या डेफिनेटली इंडिया जो पहले जब 83 वर्ल्ड कप में हमारे जो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट एनकेपी साल्वे को 2 एक्स्ट्रा टिकट चाहिए थी, वो डिनाई कर दी थी. उनका जोक बनाया गया था कि इंडिया को आ भी क्यों रहे हो तुम. और वहां से जगमोहन डालमिया जब हमारे आईसीसी प्रेसिडेंट बने और अब इंडिया है, जो इंडिया टोटल आईसीसी रेवेन्यू 38% कम्स टू इंडिया. सो इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट contributors as well as I think 75% revenue India team की वजह से आता है, and Yeah. they are taking 38%. They're giving half of the share to ICC. So ये Yeah. किसी को question नहीं करना चाहिए why India gets the most, because they're Yeah. contributing the most too. So Yeah. India काफी strong है. अब Jay Shah becoming the ICC president again. So I think India has to play a very key role in global cricket. So Indian team needs to be strong enough to match that stature of money that we have. ऐसा नहीं होना चाहिए कि this show players जैसे इंग्लैंड बहुत टाइम तक बन के रह गए थे, the players weren't performing, if just तुमने इन्वेंट किया तुम हार रहे हो सारे. India needs to have a strong team. They need to show their dominance. अगर वो प्लेयर्स में स्ट्रेंथ चली गई
तो वो व्यूअरशिप भी घट जाएगी और वो पैसा भी घट जाएगा, एंड दैट्स व्हाट इंडिया कैन नॉट अफोर्ड टू हैव, इवन वर्ल्ड क्रिकेट कैन नॉट अफोर्ड टू हैव. सो the world cricket should be invested in future of Indian cricket, it rather than in just Indian cricket team fans. So Yeah, that it's a bigger thing rather for the whole world yeah, cricket rather than just Indian fans. yeah. um, Obviously इस साल इंडियन टीम को काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे. इंडियन टीम का स्केड्यूल काफ़ी काफ़ी टाइट है. इंडिया में इंग्लैंड टूर कर रही है जनवरी फरवरी में, फिर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है, फिर इंडिया इंग्लैंड जा रही है 5 टेस्ट खेलने जून में, फिर अगस्त से ओडीआई और टी20 सीरीज है बांग्लादेश, अक्टूबर में 2 टेस्ट हैं वेस्ट इंडीज के साथ, फिर नवंबर दिसंबर में साउथ अफ्रीका के साथ टेस्ट ओडीआई और टी20 है. सो इंडिया का काफ़ी बिजी और हेक्टिक स्केड्यूल है आने वाले साल में और ये 2025 में. सो इस एक्सक्लूडिंग आईपीएल है. ये एक्सक्लूडिंग आईपीएल है. सो Indian team has to get ready quickly, get recover from these setbacks very quickly. So ये Yeah. future जो of Indian cricket team हम बात कर रहे हैं has to work around the going of transition period, going away of the stars, coming of the new talent, and strengthening our domestic structure, which is already very strong, strengthening it even further. So hopefully a billion people pray for the Indian cricket team's recovery, and I'm pretty sure we're gonna come back. It's cyclical. No, I think there is definitely talent. There's definitely the space. Like we have, internal structure जो कि उसको कर सकता है. I think it's just application, right? And I think India is one place where even application is doesn't take time, right? बहुत जल्दी हम लोग realize करते हैं कि हमें कहाँ पे आ रही mistakes हो रही हैं, and we quickly fix it, right? So that has been a thing in the recent past जो कि बहुत अच्छा देखने को मिला है, right? और as a Indian cricketer, I absolutely hope कि that is what remains as the next thing for us, which is we know what the problems are, we know what the solutions are, we know where the opportunities are, and we basically just go it and fix it, right? We have to come out of egos. We have to come out of players who are actually on the stage of retiring and say कि भाई अब तुम्हारा टाइम हो गया है. We take the hard calls and we do what's right for the Indian cricket team. Yeah, definitely. और टेस्ट क्रिकेट का फ्यूचर भी काफी स्ट्रांग है. From these series, there was so many interesting moments, so many pendulum swinging moments in a test match. So I don't think test cricket is going anywhere. People are By going to no means. continuously watch. Record viewership हुई थी in Australia in those stadiums. 3.5 लाख 4 लाख लोग पहुंच गए. So that's huge in terms of viewership. So hopefully हम टेस्ट क्रिकेट में वापस डोमिनेट करेंगे. इंडिया विल बिकम द नंबर वन टीम अगेन, एंड आवर फ्यूचर स्टार्स विल लीड अस देयर. Correct. Yeah. So from that, I'll just like to end tell everybody, keep following us, keep listening to our show, and subscribe and follow. And if you if you have any comments and any suggestions for us, do text us on any of our platforms. No, that's a wrap for us from today. And then I think we'll look forward to the India versus England that's coming up next. We'll talk to you about it very soon. Thank you and bye bye. All right. Thank you.